and that class is also going to be recorded. So let's see. I'm going to open class 8 book. अभी मैं एनोटेशन आप लोग को डिसेबल कर देता हूँ. अभी एनोटेशन अगर इनेबल रहेगा तो पता है आप लोग दिन भर यही काम करते रहेंगे, ड्राइंग बनाते रहेंगे और मैं ड्राइंग आप लोग का हटाते रहूंगा. तो एनोटेशन मैं सबसे पहले मैं डिसेबल कर दूं. चलिए मैंने एनोटेशन डिसेबल कर दिया बाकी लोग के लिए. रुद्र प्रताप सिंह, आपने सबसे पहले लाइन खींचना शुरू किया था. आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है एंड यू आर आल्सो रिकॉर्डेड. क्लास 8. Okay. Okay, which chapters? Computer virus and security risk. Is it come in your exam? Let's see. No, it will be not coming. So Photoshop, more on visual basic. Photoshop मैंने already बता रखा है, revision भी करा चुका हूँ. More on visual basic and introduction to visual basic. Chapter 6 and chapter 7. So today we will see chapter 6 and chapter 7. Clear? Chapter 6 and Sir. 7. Yes, sir. Okay. So the chapter 6 is on page number 77. Then come to the page number 77. Page number 77. Introduction to Visual Basic. Okay, what is Visual Basic? Before Visual Basic, we need to know what is computer language. So the computer language is a medium of communication used to communicate between user and computer. क्या काम करता है ये? एक कम्युनिकेशन का काम करता है कंप्यूटर लैंग्वेज. किसके बीच? यूजर मतलब जो हम लोग हैं और कंप्यूटर मतलब जो मशीन है, ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन. विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी, जैसा हम लोग आपस में बात करते हैं ऐसा कम्युनिकेशन नहीं, ऐसा इंटरेक्शन जो हम मशीन को कुछ बता सके तो मशीन उसको समझ सके. कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन वोकैबुलरी एंड बीइंग अ मशीन इट्स अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी एज पर सिंबल ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं और सिंबल्स के थ्रू ही कंप्यूटर उनको समझ सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. दीज सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग. Okay, sorry for disturb. So let's come to the computer language and computer program. So language is a medium of communication between user and computer. It should be very clear to all of you. Computer language is a medium of communication between user and computer. It has its own vocabulary and being a machine, it understands vocabulary as per the symbol of their own language. And while computer program are the instruction, whenever we talking about the computer program, it is an instruction for computer. These instructions tell a computer to perform, take necessary to process the data into information. तो computer program में क्या होता है? It's a set of instruction. Instruction means किसी को कुछ बताना, command देना. Clear? Command क्या हो सकता है? Open करना, close करना, shut down करना, on करना, paint करना, हर तरह की command होता है. Thousands and thousands of commands are there in computer. और जब भी हम commands को bound करते हैं, that will be computer program. So these instruction tells computer to perform necessary action. ये instruction क्या बताते हैं? Computer को बताते हैं, perform करते हैं कि कैसे हम कोई भी action परफॉर्म कर सके. जो भी हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं उसे क्या करते हैं? ये प्रोसेस करते हैं. कौन? कंप्यूटर प्रोग्राम. The process of writing these instruction is called programming. तो ये जो प्रोसेस है प्रोग्राम लिखने का, that is called.
sorry, instructions ka, that is called programming. The people who can write these programs are called programmer. Okay, so programming language, we have seen computer language, we have seen computer program, now programming language. What is programming language? So computer language is a medium of communication between user and computer, while computer program are a set of instructions for computer, and that instruction will tell computer to perform and process data into information, while programming language is a set of words, symbols and codes that are used for a computer program. Programming language क्या है? एक सेट है किसका? वर्ड का, सिंबल्स का, कोड्स का. प्रोग्राम को जब हम पढ़ने के लिए हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए, कुछ कोड होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. और किस ये विजुअल बेसिक क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. I hope you will understand all three concepts: computer language, computer program and programming language. Now come to the Visual Basic. Visual Basic is a programming language and developed by Microsoft. Who developed Visual Basic? Microsoft. Who developed Visual Basic? Microsoft. Okay. And it's based on basic. बेसिक आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना बेसिक. Yes, sir. Basic. Yes, sir. Yes, sir. I have already told about basic programs, that is beginners all purpose symbolic instruction. Yes, sir. that designed for Windows operating system. जो आप अपने कंप्यूटर लैब में जो सिस्टम देखते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? They all are Windows operating system. They all are Windows operating system. That contains the use of screens, mouse and keyboards rather than textual format. ये क्या यूज करते हैं? हमारी स्क्रीन को, हमारे माउस को, कीबोर्ड से यूज करते हैं. ठीक है. तो विजुअल बेसिक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्लीज बेटा म्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल अनेबल टू. इट इज डिजाइन टू इजी टू लर्न. विजुअल बेसिक बहुत ही आसान होता है. क्यों आसान होता है? बिकॉज इट्स अलाउ अ ग्राफिक, मतलब माउस से, कीबोर्ड से आसानी से हम अपने स्क्रीन को डिजाइन कर लेते हैं. क्लियर? दिस लैंग्वेज नॉट अलाउ प्रोग्रामर टू क्रिएट सिंपल एप्लीकेशन बट ऑल्सो डेवलप फेयरली कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन एज वेल. इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फायदा होता है? ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो बताता है, ये कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े प्रोग्राम्स को आसानी से हम डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन क्रिएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, teach science, mathematics, language, history, geography, etc. You can also create financial and accounting program to make yourself a more effective. जैसे आप लोग एक्सेल यूज करते हैं और एक्सेल में आप टोटल करते हैं, कोई फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये सब किसके थ्रू होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू होता है. तो इस तरह की प्रोग्रामिंग हम लोग विजुअल बेसिक में भी कर सकते हैं. क्लियर? We can play games. Games that is also based on some programming language. And a big knowledge. Let's see. A Visual Basic, which is a high-level programming language, is another version of Basic. Here is another version of Basic. Come to object, instruction, and event. Object, whatever we take. Please mute yourself, otherwise I have to mute all. और एक बार मैंने म्यूट कर दिया तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी नहीं पाएंगे. That's why I am telling you, please mute yourself. Because whatever I'm telling, that will be repeating to you. So it will be problem for you. That's why I'm telling. So object, instruction and events. So what is object, what is instruction and what is event? तो जो कुछ भी हम data as a input लेते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, that is called object. So it's also written the first step in VB to build a program using Visual Basic. Visual Basic include items such as button, text, boxes and labels. Visual Basic makes many aspects of programming as simple dragging graphic object on the screen. तो अब मैं आपको बताता हूँ विजुअल बेसिक ओपन करके कि कैसे आप, किसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कैसे आप ड्रैग कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करता हूँ. एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक्सेल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे विजुअल बेसिक आप ओपन कर सकते हैं. ओके, डेवलपर टैब, दैट इज डेवलपर टैब. डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक
Visual Basic, you will see visual screen. Insert user form. बेटा मैंने 2-3 बार बोल दिया, अब अगर आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं करेंगे तो मैं फोर्सली म्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ भी नहीं पाएंगे। मुझे ही म्यूट करना पड़ेगा। वेट फॉर म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट में मैं हटा देता हूँ। ओके, अब सही है, अब कोई शोर भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि बेटा फिर आप लोग पूछ भी नहीं पाते हैं, मुझे जबरदस्ती करना पड़ता है। एनीवे, दैट इज विजुअल बेसिक, that is visual basic, that is the user form, and that is controls, that is object in a form of object size. Just now you can have a label for simple program. Okay, here caption, you can change sum of two number. I'm taking sum of two number. Then that is an object, label is an object. Then come to some other levels, like if you want to calculate sum of two number, you have to input first number and second number. So let's enter first number. तो आप property box में जाएंगे, caption में you will write first number. These all are called objects. What is this? First number. These all are called object. इसी तरह second number ले लेंगे, second object means level 3. Level 3. Again caption, second number, clear? And result. We have to take result also. So another level you have to take for result. Either you will write result or you can write sum. Clear? And अब ये नंबर मुझे लेना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, और सम में वैल्यू डिस्प्ले कराना। सो वी नीड टू हैव टेक्स्ट बॉक्सेस। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ हम ले लेंगे, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स एंड थर्ड टेक्स्ट बॉक्स। थर्ड टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए? आउटपुट के लिए। फर्स्ट टू टेक्स्ट बॉक्स is for input and third is for output. Now we have to take command button. command button कमांड बटन किस लिए? एक्शन के लिए। अभी मैं बताया था ना आपको, ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड एक्शन। तो एक्शन के लिए हम लोग कमांड बटन लेते हैं। फिर यहाँ कैप्शन में जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे सम। अब सबको एक साथ मैं फॉर्मेटिंग करता हूं, सबको एक साथ मैं फॉर्मेटिंग करता हूं। फॉन्ट कलर, these all are called objects. बोल्ड कर दिया मैंने, 16 कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, सब बड़े बड़े हो गए, ठीक। इसको भी करते हैं फॉन्ट बोल्ड 20। ओके, so that is called label, text box, command button. These all are called objects. Label, text box, command button, these all are called objects. And instruction, now I'm going to give instruction to the command button. अब मैं command button पे instruction लिखने जा रहा हूँ। That is the command button private sub command button 1 underscore click. So यहाँ पे मेरे पास दो text box है जिसे input लेना है, तो इनको मैं instruction देता हूँ। तो इसके लिए variable the dim a, b as integer. Clear? a, b, c, output के लिए भी as integer. Clear? Now a equal to, a में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे? text box 1 dot text. Which value? Text value. b equal to text box 2 dot text. Again text value. So this text value should be converted to numeric value, means val. Val keyword we can use.
जो हमारी टेक्स्ट वैल्यू होगी उसे हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, न्यू नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो भी इनपुट लिया वो किस में जाएगा, टेक्स्ट में जाएगा, वैल। क्लियर? अब तीसरा वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस बी एंड टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी वैल्यू को हम असाइन कर देंगे, c असाइन कर देंगे। क्लियर? दैट इज द इंस्ट्रक्शन, दैट इज इंस्ट्रक्शन। पहले अब मैंने ऑब्जेक्ट लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कैसे लिया, यहाँ पे कैप्शन लगाया, सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर के लिए लेवल लगाया, सेकंड नंबर के लिए लेवल लगाया, सम के लिए लेवल लगाया, यहाँ पे फर्स्ट नंबर के लिए इनपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स लिया, as it is second same for second number, and third input third text box is for output. Now it's time for action. अब यहाँ पे एक्शन होगा, तो यहाँ रन कराएंगे प्रोग्राम को। रन कराते ही हमारे पास लिख के आएगा फर्स्ट नंबर 45 मैंने ले लिया, सेकेंड नंबर ले लिया 36, और यहाँ पे आपने सम पे क्लिक कर दिया 81 आ गया। दैट इज कॉल्ड एक्शन। क्लियर? अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रक्शन एंड इवेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कंपोनेंट आप टूल बॉक्स से उठाते हैं और अपने फॉर्म पे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंस्ट्रक्शन जो आप कोडिंग करते हैं कोड विंडो में जाके, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और जो प्रोग्राम आप रन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट। अभी उसमें डेटा टाइप मैंने लिया था डी ए कॉमा बी कॉमा सी एज इंटीजर। तो ए बी सी किस टाइप के इंटीजर है, डेटा टाइप इंटीजर थे, इंटीजर डेटा टाइप थे। तो दो तरह के डेटा टाइप, दैट फर्स्ट विल बी न्यूमेरिक एंड सेकंड विल बी नॉन न्यूमेरिक। सो इफ यू वांट टू हैव सम नेम, अगर किसी का नाम मुझे इनपुट लेना हो तो कौन सा हो जाएगा, वो नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा। अब न्यूमेरिक में इतने होते हैं, बाइट, इंटीजर, मैंने क्या लिया था, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, डेसिमल, सिंगल, डबल, करेंसी, एंड ईच वन हैव देयर ओन रेंज, ईच वन हैव देयर ओन स्पेसिफिकेशन। इसी तरह से नॉन न्यूमेरिक में स्ट्रिंग, boolean, variant, object, date and time. String, normally we can have string. Boolean is used to take either true or false value, or yes or no value. Variant data type used to hold fixed length string. अगर कोई fixed length string है तो हम variant data type use करते हैं। And object is also a data type which हम लोग जो हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं। डेट एंड टाइम, जब भी हमको किसी का डेट ऑफ बर्थ की एंट्री लेनी होती है, देन वी कैन हैव ऑब्जेक्ट डेट एंड टाइम। देन सम सफिक्स कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर लिटरल्स, एम्परसेंड यूज्ड फॉर लॉन्ग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज्ड फॉर सिंगल, हैश यूज्ड फॉर डबल, एंड एट यूज्ड फॉर करेंसी। एग्जांपल में दिया हुआ है ₹2000, तो ये किससे डिनोट होगा, @ बिकॉज इट्स अ डेटा टाइप ऑफ करेंसी। Now come to variable. Variable means जो भी हमने ए बी सी लिया था, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के लिए, तो वेरिएबल मीन्स बार बार वैल्यू जिसकी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए मैंने फिर से प्रोग्राम रन कराया इसको, अब इस बार मैंने पिछली बार 36 एंड 45 दिया था, इस बार कुछ और वैल्यू देते हैं 26 52, तो इस बार वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट मीन्स एवरी टाइम ए में दूसरी वैल्यू, ए में हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, बी में चेंज हो रही है, और ए और बी में चेंज हो रही है तो सी में भी चेंज हो रही है। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू बार बार चेंज होता है, दैट इज वेरिएबल। ओके, दीज आर द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए। यूज लेटर और नंबर इन द नेम, आप लेटर यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं नेम में। Maximum length for a variable name is 255 कैरेक्टर। आपका जो भी वेरिएबल है 255 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। The only special character that is allowed is underscore. Underscore you can use only. Period or space is not allowed for variable naming. कैसे डिक्लेयर करते हैं, dim variable name as data type। तो मैंने ऐसे लिया था dim a as integer, dim a as integer, मैंने ऐसे लिया था। So that is the variable that have declared an expression can be any of the following: a mathematical expression, a literal, a variable, a logical or string expression। ये इतने चार मतलब हो सकते हैं आपके वेरिएबल प्रोसेस के लिए। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, जैसे अभी मेरा 2 नंबर का सम था, दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लिटरल्स, वेरिएबल्स, लॉजिकल और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन।
देन ऑपरेटर, अभी मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया था अपने प्रोग्राम में? प्लस ऑपरेटर यूज किया था। कौन सा यूज किया था? प्लस ऑपरेटर यूज किया था। अभी मुझे मल्टीप्लाई का प्रोग्राम बनाना हो तो स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर मुझे एक्सपोनेंट का प्रोग्राम बनाना हो तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। डिवीजन का यूज करना होगा तो बैक स्लैश। इसी तरह से मॉडुलस निकालना है तो मॉड, एमओडी, इंग्लिश के लेटर में लिखेंगे एमओडी। इंटीजर डिवीजन करना हो तो बैक स्लैश। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जैसे हेलो एंड वर्ड लिखते हैं तो ये हेलो वर्ड आ जाता है, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। चलिए हम एक्सपोनेंट आपको दिखाते हैं कैसे एक्सपोनेंट कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने यहीं पे ए और बी के बीच में एक्सपोनेंट वाला सिंबल यूज कर लिया होता। पहले इसको क्लोज करेंगे, अब करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला सिंबल यूज कर लिया होता। अब देखिए क्या आएगा। अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन कराऊंगा तो अब एक्सपोनेंट आएगा। पहला नंबर मैंने ले लिया 5, दूसरा नंबर ले लिया 2। कितना आना चाहिए वैल्यू? सम है तो 7 आना चाहिए, लेकिन वहां एक्सपोनेंट है तो क्या आ जाएगा? 25, 5 टू द पावर 2 आ गया। सो दैट इज प्रोग्राम हैव बीन चेंज। तो कौन सा ऑपरेटर मैंने यूज किया? एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज किया। तो जो ऑपरेटर आप यूज करेंगे दैट विल बी चेंज ऑटोमेटिकली। मॉड ऑपरेटर, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। मॉड ऑपरेटर प्लस इज एन ओवरलोडेड ऑपरेटर बिकॉज इट्स परफॉर्म 2 ऑपरेटर्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा you place either inside. When you place 2 string value on either side, plus or ampersand, Visual Basic concatenate the string and treat it's a single string. Single string concatenate करता है। Let's check करते हैं हम लोग। concatenate करते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू हटा दिया, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे। It will be text value, and I'm going to concatenate ampersand symbol A and B. Clear? A and B, and that will be string A, B, C as string S T R I N G string. Clear? तो हमारा डेटा टाइप भी चेंज हो गया, एज स्ट्रिंग हो गया। अब हम कॉन्केटिनेट करेंगे। कॉन्केटिनेट करते हैं तो अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। फर्स्ट नंबर लेना नहीं था, इस बार टेक्स्ट लेना था। मैंने ले लिया अमित, दूसरा KUMAR सम, अमित कुमार। दैट इज कॉन्केटिनेशन। टेक्स्ट क्या करता है? सिंगल स्ट्रिंग को ट्रीट करता है, दैट इज टेक्स्ट कॉन्केटिनेशन। देन कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट भी आते हैं। कोई भी हम वैल्यू रखते हैं तो ट्रू फॉल्स रिजल्ट विल बी शोन। लेट्स चेक कंडीशनल ऑपरेटर। Now let's see the program. चेक करते हैं कोई प्रोग्राम, कोई नंबर, ग्रेटर नंबर को चेक करते हैं। ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर चेक करते हैं। चेक और रिजल्ट हियर चेक। क्लियर? अब एज इट इज हमने लिया है। यूजर फॉर्म पे जाएंगे, दैट विल बी वैल्यू अगेन, वैल्यू and that will be integer, that will be integer. now प्रोग्राम को मैं रन कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 6। अभी तो ये क्या किया है? कॉन्केटिनेशन अभी मैंने नहीं हटाया था। ओके, लेट्स चेक। अभी यहाँ एम्परसेंड का सिंबल है तो कॉन्केटिनेट हो गया। सो 5 and 6 कॉन्केटिनेट हो गया। तो अभी हमें करना है क्या? चेक करना है A ग्रेटर देन B। क्लियर? अब हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर लिया।
प्रोग्राम को मैंने रन करा दिया, प्रोग्राम को मैंने रन करा दिया। फर्स्ट नंबर 5, सेकंड 6, सेकंड नंबर 6, चेक 0। 0 कब आएगा? जब वैल्यू फॉल्स होगी। कौन कब आएगा? जब वैल्यू ट्रू होगी। अब यहाँ पे दे देता हूं मैं 6, यहाँ दे देता हूं 5। लेट्स सी, वैल्यू 1। Okay, I hope you will understand what is operator. Come to the logical operator. That will be true false value. And or XOR not. That is the 4 types of operator. And it will take 2 types of input. Then Visual Basic. Visual Basic अभी मैंने आपको बताया था कैसे मैंने ओपन किया है. And creating program, how to create program using Wizard. So you can click on Visual Basic Wizard and click next. You will see the screen, and finally you will get your home page screen. So in this chapter you will see how to create simple program. Next chapter more on Visual Basic. It will tell how to start Visual Basic. That is your screen. That's your component: menu bar, toolbar, toolbox. That is your form, project container window, project explorer window, properties window, form layout window. Okay, and toolbar will have debug, edit, form editor and standard options. ये सब इंटरफेस क्यों बने होते हैं? ताकि आप अपने स्क्रीन पे अपने प्रोग्राम को देख सकें जो आप कंट्रोल करें. दैट इज द टूल बॉक्स. टूल बॉक्स इज द ऑब्जेक्ट विच वी विल टेक ऑन अ फॉर्म. फॉर्म पे यही टूल बॉक्स से हम क्या करते हैं? कंपोनेंट उठाते हैं. प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअली arranging component or controls on a form. Visual Basic can also be used with other Microsoft software to program small routines. Then that is the project container window, form, project explorer window, property window, form layout window जो स्क्रीन की साइज को relatively पोजिशन करता है. So that is form code window जहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग किया था. And form will be form1.vb. जो भी हम फॉर्म सेव करेंगे form1.vb. डबल क्लिक करके फॉर्म पे आप कोडिंग कर सकते हैं. देखिए मैंने जैसे लिखा था वहां पे वैसे यहाँ पे 2 नंबर का प्रोग्राम आपको करके बताया जाएगा कैसे. कंट्रोल, दीज आर द कंट्रोल्स. कंट्रोल्स मेन कमांड बटन इज देयर जिसमें हम लोग एक्शन करते हैं. इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग पैराडिज्म इन विच द फ्लो ऑफ प्रोग्रामिंग डिटरमाइंड बाय इवेंट. तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है? कोई भी प्रोग्रामिंग पैराडिज्म किससे डिवाइड होता है? किससे डिटरमाइंड होता है? इवेंट्स के थ्रू. एंड दैट सेंस द आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूजर एक्शन. जैसे कीबोर्ड से, माउस से, किसी के क्लिक से ये इवेंट जनरेट होगा. कैसे लेवल लेते हैं? मैंने आपको बताया था लेवल कैसे लेते हैं. इट्स वेरी इजी टू हैव अ लेवल. टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेवल एंड टेक्स्ट बॉक्स. लेवल इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्टैटिक टेक्स्ट. इट डिस्प्ले द टेक्स्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम. और टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है? इट्स अ डायनामिक टेक्स्ट. इट डिस्प्ले द टेक्स्ट व्हिच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम एग्जीक्यूशन. लिस्ट बॉक्स अभी मैंने आपको लिस्ट बॉक्स नहीं बताया. लिस्ट बॉक्स कैसे लेते हैं? आप किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, आपको अगर किसी एक का सिलेक्शन करना होता है, जैसे मैंने वीक ले लिया हुआ है, वीक, इसमें मैंने वीक ले लिया है, वीक मुझे लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? लिस्ट बॉक्स ले सकता हूँ. कहाँ से? लिस्ट बॉक्स यहाँ से ले सकता हूँ. लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स से क्या करना पड़ेगा? मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी. लिस्ट बॉक्स में क्या करना पड़ेगा? कोडिंग करनी पड़ेगी. तो जितने भी आइटम्स आपको रखने हैं यहाँ पे, यू कैन कोडिंग इन लिस्ट बॉक्स. लेट्स चेक कैसे लेते हैं. लिस्ट 1 डॉट एड आइटम. तो वैसे हम लोग यहाँ भी ले सकते हैं. लिस्ट 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम आ गया. अब एड आइटम में कुछ भी देते हैं, संडे. इसी तरह से कॉपी करेंगे. अब यहाँ पे चेंज करते जाएंगे. संडे, मंडे,
Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, and finally Saturday. Clear? So this is the entry of your list box. Let's see in your book list box की entry आप अपने program में करते हैं. And once you completed your entry, you will run your program. Program को हम लोग run कराते हैं. No result box. There is some problem. It will be on form. Form पे load करते हैं इसको. Form 1. Okay. Come to the next topic. So that is the way how to enter code in your list box. And form के load event पे रखते हैं इसको. Form के load event रखेंगे. कहाँ रखेंगे? Form के load event पे. Form 1. Let's check. Form के load event पे है. That is click event. Click पे भी रख लेंगे. Control X और यहाँ पे Control V. F5. Okay. Load. It's not working right now. So let's release it. Combo box. Combo box क्यों यूज करते हैं? जैसे कमांड जैसे लिस्ट बॉक्स था वैसे ही combo box होता है. Both are same, but difference between list box and combo box is we can select only one option from the list. In combo box, by list box, we can select multiple options from the list. We can't add information at runtime, but in combo box, we can add information at runtime. We have only drop down facility in combo box, while we have both drop down and drop up facility. We can use checkbox within the list box in list box, but we can't use checkbox within the combo box. These are the examples. So I think then if then else. अभी हम if then else का एक एग्जांपल बताएंगे और मैसेज के थ्रू समझाएंगे कैसे if then else वर्क करता है. अब एक प्रोग्राम है उसमें फॉर ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे मैंने बताया है तो यहाँ पे लिख देंगे MSG बॉक्स यहाँ पे अगर A B से बड़ा होगा A इज ग्रेटर प्लस A यहाँ पे मैसेज बॉक्स कंट्रोल C अगर नहीं होगा तो एल्स B इज ग्रेटर यहाँ पे एंड इफ और यहाँ पे इफ A is greater than. अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लगा दिया if then else का. अब यहाँ पे हम रन कराते हैं यहाँ पे प्लस B हो जाएगा. फर्स्ट नंबर इज 5, सेकेंड नंबर इज 6. Okay, some error is there. A and B, that is integer value. Okay, and F5. Okay, right now I have to remove that box, that is list box. So that is the code
we can write that is the code. First statement, then first statement, else, and second statement. Then looping, and for next loop. Loop means whenever we do the same condition in so many times until we didn't find the condition, then that is called do while and do until. So this is the chapter. I hope you all will know. If you have any doubt, you can ask. Two things is there, means if then else, do while and while. You can also do in your phone whenever you have Visual Basic programs. Thank you, class. Now I am going to open. अब आप पूछ सकते हैं कुछ भी. Class, any doubt? Sir, what is looping? Looping पता है तो कोई इटरेशन होता है, कई बार प्रोसेस को करते हैं जब तक कंडीशन मिल नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड लूपिंग. जब इटरेशन कई बार प्रोसेस में होता रहता है until condition will not satisfied, जब तक कंडीशन मिल जाता है तब दैट इज कॉल्ड लूपिंग. Sir, when we use if then else command. जब दो नंबर में बड़ा नंबर फाइंड आउट करना हो तो इफ देन एल्स यूज करते हैं. मैंने बताया तो अभी. Anyone else? Anyone else? Yes, sir. पूछिए. Sir, what can explain debug? पूछिए. Debug. डीबग जब कोई एरर होता है, जब कोई एरर हमारे प्रोग्राम में होता है तो उसे दूर करने के लिए हम डीबग पे क्लिक करते हैं. एनीवन एल्स? हमारा टाइम ओके. थैंक यू क्लास. अब मैं इस क्लास को अपलोड कर दूंगा. जिन्होंने नहीं देखा है वो उसमें चैनल में देख लेंगे.